Hello student, in the previous video we have discussed the areas and perimeter or circumference of a circle. Now today we discuss the areas and length of the part of a circle. माने किसी भी सर्कल का जो एक पार्ट लें उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे. पिछले इसमें हमने पूरे सर्कल का और उसका सर्कमफरेंस का एरिया लेंथ फाइंड किया था. नाउ हियर इफ देयर इज अ सर्कल with radius r. Suppose this is a circle with center O and radius r. Okay. So this perimeter is called circumference and the part of a plane inside the circle is called its area. So length of circumference of circle is is 2 pi r and area of circle is pi r square. R is the radius. Now if we take 2 points on the circumference of the circle, suppose point A and B on the circle, and if we join these points to the center of the circle, so we have this part. So AB is a part of circumference. AB is a part of circumference which is known as arc. So here AB is an arc. So here when we take 2 points on a circle, we have two parts of the circumference. One is AB and another is BA or BPA, this part. So one part, this arc is smaller than this another arc. So AB is minor arc, ये minor होगा, and arc BPA is also an arc which is known as major arc. So this is a part of a circumference. Arc is a part of circumference. Now if this arc subtends an angle of theta at the center, it makes an angle of theta at the center of the circle, then we can get its length. So length of arc is theta upon 360 into 2 pi r. It is a part of circumference. Circumference is 2 pi r. How much part? Theta by 360. Theta degree is an angle subtended by this arc at the center. माने ये जो angle theta है ये arc के थ्रू सेंटर पर एक एंगल सब्सटेंड हो रहा है. और यदि हम इस आर्क को इंक्रीज करते हुए पूरा कंप्लीट यहाँ तक ले आए, पॉइंट बी को इस तरीके से रोटेट करते हुए, तो ये एंगल जो है वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री. सो इट इज अ थीटा डिग्री पार्ट ऑफ 360. सो थीटा बाय 360 डिग्री into 2 pi r. So what we need theta and r and theta is known, then we can get the length of arc of a circle. Okay, clear? Now there is inner part. ये जो part है, area of this part, area of AOP means area surrounded by the two radii and an arc is called the sector. So sector AOB, सेक्टर AOB. एक और क्या होगा, इस पूरे एरिया से यदि हम इस पार्ट को निकाल लें तो एक रिमेनिंग पार्ट होगा जो अनसेडेड दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड द मेजर सेक्टर. ये माइनर सेक्टर होगा, ये मेजर सेक्टर होगा. ये माइनर मेजर डिपेंड करेगा ये एंगल के ऊपर, जो थीटा डिग्री एंगल है इसके ऊपर डिपेंड करेगा. जो सेमी सर्कल है वो सर्कल सेंटर के ऊपर 180 डिग्री एंगल सब्सटेंड करता है. तो यदि कोई एंगल, an arc subtend an angle less than 180 degree, then it will be minor arc. And if an angle subtended by an arc
more than 180 degree, then it will be major arc. तो ये सेमी सर्कल के कंपैरिजन में माइनर और मेजर आर्क होगा. ओके, तो अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर AOB, it is also a theta by 360 part of area of circle. So it is theta by 360 into pi r square. Okay, so we have these two formula, length of arc and area of sector. यहाँ पर माइनर और मेजर सेक्टर आपको ध्यान रखना है. फॉर्मूला दोनों के लिए यही है, केवल आपको थीटा क्या है? इट इज एन एंगल सस्टेन्ड बाय आर्क एट द सेंटर, माने सेंटर के ऊपर आर्क के थ्रू जो बनाया गया एंगल है वो है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट एक और आता है सेगमेंट. सेगमेंट क्या है इसको पहले समझ लें. सेगमेंट इज the area or the part which between the arc and its corresponding chord. ये जो पार्ट है this is called segment. ये क्या होगा? सेगमेंट होगा. ये जो पार्ट है, area between the chord, AB is chord and corresponding arc, AB is an arc. तो ये जो एरिया होगा दैट इज कॉल्ड द एरिया ऑफ सेगमेंट. अब यहाँ पे भी हमारे पास दो सेगमेंट होंगे, माइनर एंड मेजर. माइनर सेगमेंट क्या है? जो माइनर आर्क और कॉर्ड के बिटवीन जो सेगमेंट है वो माइनर सेगमेंट होगा. मेजर सेगमेंट क्या होगा? देखिए, अब एक आर्क हमारे पास क्या होगा? BPA is another arc which is major arc, which is the major arc. So area between the chord and the major arc will be the major segment. So we have two segment, minor segment and major segment. So segment is the area between the chord and corresponding arc. माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच का एरिया माइनर सेगमेंट होगा. मेजर आर्क और करस्पॉन्डिंग कार्ड के बीच जो एरिया होगा वो मेजर सेगमेंट होगा. ओके, अब हम इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे? अब हमारे पास एक जो पार्ट है कि एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट, इफ यू लुक एट दिस फिगर, यदि हम इस फिगर को देखें तो क्या होगा? ये एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर AOB, माने इस सेक्टर का हम एरिया निकालें, उससे ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOB, इसका एरिया यदि हम माइनस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा. ये जो एरिया है, इस पूरे सेक्टर के एरिया से अपर पार्ट जो ट्रायंगुलर पार्ट है इसका एरिया माइनस करने से एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा. मींस एरिया ऑफ सेगमेंट इज एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. तो ये सेक्टर में ये आर्क होगा और ट्रायंगल में ये लाइन होंगे. ओके, अब हमें ये निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर. इसका हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कैसे फाइंड करेंगे. हमारे पास इस फिगर में दो ही चीजें मालूम है. वन इज रेडियस एंड अनदर इज एंगल थीटा विच इज सस्टेन्ड बाय एन आर्क एट द सेंटर. तो यहाँ पर अब हम ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. तो यदि हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सेंटर टू द कॉर्ड AB, ये परपेंडिकुलर यदि हमने ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर क्या करेगा? इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा एज वेल एज जो कॉर्ड है इसको भी बाइसेक्ट करेगा. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. और इसी के साथ हमने क्लास 9th में ये थ्योरम भी देखा है कि इट बाइसेक्ट द अपोजिट एंगल ऑल्सो. तो यहाँ पर ये मान लीजिए ये दिस पॉइंट इज M. लेट OM is perpendicular to AB. So this implies that AM equals to MB equals to half of AB.
as well as angle AOM equals to angle BOM equals to half of angle AOB, which is theta by 2. Because angle AOB is theta, so it will be theta by 2. अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करेंगे. ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल AMO. AMO is a right angle triangle. Okay, so we find AM is the opposite side of this angle theta, and OM, which is the perpendicular or height of this triangle, is the adjacent side. तो हमें opposite side और adjacent side find करना है. Hypotenuse given है, radius R is given. So in triangle AOM, it is a right angle triangle. So OAM upon OA. AM is what? Opposite side. Opposite side AM upon OA, that is R, is sine theta by 2. Sine of theta by 2. OM के AM कितना है? AM फाइंड करना है. OA is R, is sine theta by 2. This gives AM equals to R into sine theta by 2. Okay. So what is AB? Since AB is twice of AM, which is 2 into R into sine theta by 2. Okay, we get the length of AB. We need height of this triangle also, and OM upon OA. OM is adjacent side for this angle theta by 2, and OA is hypotenuse. So adjacent side upon hypotenuse is cos, and angle is theta by 2. ये angle theta by 2 है. OM आपको find करना है. OAR है, ये cos theta by 2 होगा. This implies that OM is R into cos theta by 2. Okay. So we have base and height. So area of segment equals to, यहां से देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर AOB जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट. Half base is AB and height is OM. ये पॉइंट क्लियर हुआ? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये साइड्स हमने फाइंड कर लिए. तो ये कितना होगा? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ. AB कितना है? 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू OM कितना है? R cos थीटा बाय 2. और यहां से यदि हम इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा? ये होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2. आर इंटू आर स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. अब हमारे पास फॉर्मूला ये है जो अभी आपने शायद नहीं पढ़ा है, आगे आप पढ़ेंगे कि 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2. ये फॉर्मूला है हमारे पास कि साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो ये देखिए यहाँ थीटा की जगह थीटा बाय 2 है. 2 इंटू साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2. तो ये यदि यहाँ पर थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा. तो यहां पर आप देखेंगे कि अब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा.
दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेगमेंट। इसको दो तरीके से, एक तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, इससे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए फॉर्मूला याद नहीं है तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, जो अभी हमने यहाँ से निकाला है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये एंगल हाफ हो जाएगा, AM फाइंड कीजिए, हाफ ऑफ द कॉर्ड, उसका डबल कर दीजिए तो बेस मिल गया, और OM माने हाइट निकाल लीजिए और फिर वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। दोनों तरीके हैं। तो चलिए यहाँ पर दो मुख्य बातें, मेन पॉइंट्स जो हैं, ये सारी चीजें, चाहे आप लेंथ ऑफ आर्क, चाहे एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, हमारे पास दो चीजें अननोन है, r एंड थीटा, रेडियस ऑफ सर्कल एंड एंगल थीटा विच सबटेंड बाय आर्क एट द सेंटर। यदि हमको ये दो चीजें मालूम है तो हम ये लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि यदि केवल सेगमेंट की बात की गई है तो वो माइनर सेगमेंट होगा, मेजर सेगमेंट अलग से मेंशन किया हुआ होगा कि मेजर सेगमेंट की जब बात होगी तो वो अलग से मेंशन होगा। चलिए अब हम आगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड है। नाउ वी कम टू सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.2। The question number 3 is the length of minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि सपोज दिस इज अ क्लॉक, थोड़ा सा इमेजिन करें कि ये क्लॉक है और एक ये मिनट हैंड है। सपोज ये मिनट हैंड है, ये कितना लेंथ है इसका, 14 सेंटीमीटर। अब ये मिनट हैंड जो है वो 5 मिनट्स में, सपोज ये यहाँ पर ये 5 मिनट्स है, मान लीजिए ये 2 था, ये 3 था, इस तरीके का डायल है, तो ये 5 मिनट्स में कितना एरिया स्वेप्ट करेगा, माने ये पार्ट आपको निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। यदि आप इसको देखेंगे तो ये क्या बन गया, मान लीजिए ये सेंटर O हो गया, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, तो ये AOB, एरिया ऑफ सेक्टर AOB आपको फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकालना है तो ये तो रेडियस हो गया आपका। अब आपको एंगल फाइंड करना है, एंगल गिवन नहीं है ना। तो अब हम पहले यहां पर फर्स्ट वी फाइंड द एंगल ऑफ दिस मिनट हैंड सबटेंड इन 5 मिनट। तो इन जनरल पहले हम देखें कि ये जो मिनट हैंड है ये 360 डिग्री जब रोटेट होता है, हमारे डायल में हम देखें तो मिनट हैंड जब 360 डिग्री रोटेट होगा तो ये कितने पार्ट्स कवर करता है, 60 पार्ट। 1 मिनट 60 मिनट में ये डिवाइड है, तो 1 मिनट में ये 360 डिग्री कवर करता है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, सो एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट कितना होगा, 360 डिग्री अपॉन 60, क्योंकि टोटल 360 डिग्री को 60 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। तो 1 मिनट में ये 6 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, तो एंगल सबटेंड बाय, सो एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड in 5 minutes will be 5 into 6 degree which is 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री। 5 मिनट में ये 30 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। और R कितना है, R is 14 सेंटीमीटर and theta is 30 डिग्री। So area swept by minute hand in 5 minutes is area of sector. Okay, put the value. R is 30 degree upon 360 into 22 by 7 into
14 into 14. Okay, so this will cancel. 3 12s are, then 2 6s are, then 2 11s are, again 2 3s are, 2 7s are. तो इस तरीके से, और 7 से 7 कैंसिल होगा। तो हमारे पास वैल्यूज क्या, रिमेनिंग वैल्यूज क्या होंगे? 11 इंटू 14 अपॉन 3, और इंटू कर लें, 14 1 जा 14, 1 अपॉन 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर. So area swept by minute hand in 5 minutes is 154 upon 3 square centimeter. Okay. Now we come to another question. Question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find length of arc, area of sector formed by the arc, and area of segment formed by the corresponding chord. माने ये जो सर्कल में हमको रेडियस गिवन है, थीटा गिवन है, एंगल सबटेंड एट द सेंटर बाय एन आर्क, तो आपको लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट, ये हमको फाइंड करना है. माने वो जो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हैं उनका हम यूज करेंगे यहाँ पर. सपोज दिस इज अ सर्कल with center O and radius how much? 21 centimeter, and angle is 60 degree, and AB is an arc. So given that here R is 21 centimeter and theta is 60 degree, it subtends an angle of 60 degree. तो यहां पर फर्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस लेंथ ऑफ आर्क इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर्क. ओके, वी पुट द वैल्यू 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू 21. We could take the value of pi is 22 by 7. Now here by simply 60 upon 360 is 1 by 6, 7 3s are, so this becomes 2 into 22 into 3, again 3 2s are 6, so we have 22 centimeter is the length of arc. Okay, now we find the area of sector. Area of sector is theta by 360 into pi r square. Okay, now we put the value 60 upon 360 into 22 by 7 into 21 into 21. Okay, now this will be 6, now 7 3s are 21, 3 2s are 6, 2 11s are, so what value we have? 11 into 21, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1s are 11, 1 22 plus 1 23 square centimeter, because this is an area, so its unit is square centimeter. Now third we find the area of segment. Area of segment माने माइनर सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं. यदि हम यहाँ से कॉर्ड ड्रॉ करेंगे एक, तो ये कॉर्ड है और ये आर्क है, तो ये जो शेडेड पार्ट है दिस इज द सेगमेंट. ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, ये सेगमेंट होगा. ओके, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ चाहे तो आप फॉर्मूला लिख दें डायरेक्ट, थीटा बाय 360 into pi r square minus 1 by 2 r square into sin theta. This is the area of triangle, है ना. तो ये आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे.
फॉर्मूला से भी कर लेंगे और नहीं तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो 60 डिग्री है ये 30 डिग्री में चेंज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आप ए भी फाइंड करेंगे और परपेंडिकुलर का लेंथ निकालेंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूले में पुट करके और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं। अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले पर सॉल्व कर। नाउ वी पुट द वैल्यू 60/360 into 22/7 pi r square is 21 square minus 1/2 21 square into sine 60 degree. Okay, now we have simplified this part here. So चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लें या फिर सॉल्व करेंगे तो भी इतना ही आएगा। माइनस 21 स्क्वायर 441/2 इंटू √3/2 साइन 60 इज √3/2। ये हो जाएगा 231 माइनस 441/4 इंटू √3। आप इसको चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। ये होगा 231 माइनस 4 1 0 4 2 0.25 ओके इंटू √3 1.732। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। ओके, कितना आएगा ये इंटू करना पड़ेगा 231 माइनस यहाँ पर चाहे तो आप इंटू कर लें 1732 और इसका टोटल करेंगे इंटू करेंगे 110.25 तो ये हो जाएगा 190.95 953 मीन्स 95 और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 231.00 190 माइनस 190.95 हो जाएगा 500 देन 4 so 40.05 square centimeter is the area of sector area of segment। तो यहाँ पर length of arc, area of sector and we find the area of segment। तो यहाँ पर r और थीटा रिक्वायर्ड है, यदि हमको मालूम है तो हम फाइंड कर लेंगे। कई क्वेश्चंस में ये इनडायरेक्ट गिवन होते हैं, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो सेंटर एंगल था थीटा ये इनडायरेक्ट वे में था, उसको हमने फाइंड कर लिया। ऐसे भी डेली लाइफ में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में भी हैं जिनमें इनडायरेक्ट रेट आर और थीटा गिवन है। क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आर क्या होगा और थीटा क्या होगा। ओके, नाउ वी कम टू अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड of side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. Number 2, the increase in grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5. तो इसको पहले हम थोड़ा समझ लें कि ये किस तरीके का है। There is a square field of length 15 मीटर। ये 15 मीटर लॉन्ग एक स्क्वायर फील्ड है, ग्रास फील्ड है। इसके किसी एक कॉर्नर पर एक हॉर्स को टाइड किया गया है। ये हॉर्स है, ठीक, विच इज टाइड विथ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये कितने एरिया का ग्रास ग्रेज कर सकता है इन दिस एरिया?
मैक्सिमम कवरेज क्या होगा इसका, 5 मीटर फ्रॉम ए टू बी। यदि हम इस शेप को देखें तो ये क्या बन गया, इट इज इन द शेप ऑफ सेक्टर। So ultimately we have to find the area of sector. Okay, so here the side of square is 15 meter and the length of rope is 5 meter. Now the angle of corner of square is 90 degree. Each angle of square is 90 degree. So at corner it makes a right angle. Okay. So ultimate here we have the radius and the angle. ये दोनों चीजें हमारे पास हैं। यहाँ पर ये हो गया रेडियस और ये हो गया थीटा। So first we can get the area of part which horse can graze when it tied with a 5 meter long rope. So area of grass field in which horse can graze when it tied with 5 meter long rope will be theta by 360 into pi r square. Now put the value 90 upon 360 into pi is how much, 3.14, ये क्वेश्चन में गिवन है, और r कितना है, r is 5. ओके, और यहां पर क्या है, ये एरिया है तो स्क्वायर होगा, तो 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5। तो यहां पर अब आप सॉल्व करें इसको तो ये कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 360 1/4 इंटू 3.14 इंटू 25 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.735 इंटू 25 और 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 5 से 125 12 25 8 से 200 212 so remainder will be 21 25 7 से 175 plus 21 196 so 196 and decimal will be here so 19.63 square meter area। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, द एरिया दैट पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड पार्ट क्या है, अब ये जो रोप है ये इंस्टेड ऑफ 5 इट बिकम्स लेंथ ऑफ 10। ये 10 मीटर लॉन्ग रोप से यदि ये टाइट कर दिया गया, अब हमारा सेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सेक्टर होगा, ये 10 मीटर लॉन्ग है। आपको ये इंक्रीज्ड एरिया ये वाला निकालना है, तो फर्स्ट आप सेकंड क्या निकालेंगे, एरिया व्हेन द हॉर्स इज टाइड विथ 10 मीटर लॉन्ग रोप, और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कई लोग डायरेक्ट भी ये निकाल सकते हैं, इस एरिया ये टोटल एरिया से ये वाला एरिया माइनस करके, उसमें भी वही पार्ट है। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट को यदि हम सॉल्व करके देखें, सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पर हमारा r क्या हो जाएगा 10 मीटर एंड थीटा विल बी 90 डिग्री when the length of rope will be 10. So area of sector when it tied with 10 meter long rope will be theta means 90 upon 360 into 3.14 into 10 into 10. So this becomes 1/4 into 1/4 into 3.
इसको सॉल्व करेंगे तो 0.785 इंटू 100, ये कितना हो गया 78.5 स्क्वायर मीटर। ये देखिए 90/360 इंटू 3.14, ये अभी हमने सॉल्व किया, तो ये कितना आया 0.785 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो ये हो जाएगा 78.5 स्क्वायर मीटर। सो देयरफॉर increased area of green field or grass field will be 78.5 minus 19.63, तो कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये होगा 7, 8, then 1, 58.87 square meter. So this is the increased area. So we have two answers: increased area, this is second part, and how much area of the grass when horse is tied with 5 meter long rope is 19.63 स्क्वायर मीटर। तो ये ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, उनमें यदि आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको थीटा और रेडियस मिलेगा। थीटा और रेडियस जब आपको मिल जाए सर्किल का, तो आप उसमें चाहे तो वो लेंथ ऑफ आर्क से रिलेटेड हो सकता है, एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड हो सकता है, या एरिया ऑफ सेगमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो ये बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखिएगा, एग्जाम्पल के भी क्वेश्चन आप कीजिएगा, और फिर कहीं पर कोई डिफिकल्टीज हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।